Hello everyone. In this video, we will discuss about the equilibrium chapter, that is from class 11th chemistry, and that is very significant in various disciplines of your higher education, including pharmacy also. So we will discuss a topic that is very commonly or very widely used concept. Okay, and we will discuss about first what are weak acids and how these weak acids get ionized, and how do we calculate their ionization constants of weak acids, right? So let's start it from the NCERT textbook. So if you consider a weak acid HX that is partially ionized, why? Because why partially? Because weak acid, they are partially ionized, they are not completely ionized in the aqueous solutions in water. तो जो भी weak acid रहेगा, weak base रहेगा, weak electrolyte रहेगा, वो पूरा नहीं ब्रेक डाउन होगा, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, पूरा टूटेगा नहीं, हमेशा पार्शियली ब्रेक डाउन उसका या आयनाइजेशन होगा. So we can write it like this: HX plus water, that gives us hydronium ion in aqueous plus X minus, okay, in aqueous. So HX is actually the concentration or initial concentration of weak acid over here, and in water that will give us hydronium ion. हमें पता है कि एसिड क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं और वो H+ वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है. क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन. इस H3O+, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं. ठीक है. तो द कॉन्सेंट्रेशन, इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इनिशियली क्या होगा, कोई भी हाइड्रोनियम आयन नहीं रहेगा एक्स्ट्रा, कोई भी X- आयन एक्वस का नहीं रहेगा, एनायन नहीं रहेगा, सिर्फ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी इसकी वीक एसिड की. तो वी विल राइट इट सी. इफ वी से कि अल्फा एक्सटेंड तक कोई भी वीक एसिड आयनाइज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, C -C मीन्स जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से अल्फा हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और इधर अल्फा बनेगा, तो प्लस सी अल्फा इधर बनेगा. ठीक है. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन -C अल्फा, and over here we will write C alpha. So C is actually the initial concentration of undissociated acid. HX is HX जो किस टाइम पे है, टाइम 0, जहां पे भी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, जस्ट इनिशियल टाइम है उसका, टाइम T is equal to 0 के ऊपर. ठीक है. Alpha is extend up to the ionization that is taking place, HX, and using these notations we can derive the equilibrium constant like this. The equilibrium constant for the above discussed acid dissociation equilibrium. So we write Ka. K is actually dissociation constant हमने माना है या ionization constant हमने माना है. तो अगर हम K लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट्स यहाँ 2 हैं, तो C अल्फा प्लस C अल्फा उसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो दैट विल बी लाइक दिस, C प्लस C अल्फा, और वी सिंपली राइट C अल्फा and C alpha. So that will give us this one, C square plus alpha square, C square into alpha square. ठीक है. ये यहाँ से हमें मिलेगा. And in the at the bottom or in the denominator we will keep C 1 minus alpha as such from the by taking the C constant as such from the reactant side. So we will get C alpha square divided by 1 by alpha. Actually, like this C and C we have by taking common, we have divided. Okay. So K is the dissociation constant and it is represented by alternatively by, so we can write it like this. The equation, next equation can be Ka. K is actually the constant. Okay, that is actually measure of how much the acid is stronger or how much an acid is weaker. So K is the product of the H plus and the product of cation and product of anion, the H plus, and that is X minus divided by HX. ठीक है. So we get this Ka as at a given temperature Kt. The Ka is the measure of the strength of the acid HX. That is, larger the value of the Ka, the stronger will be the acid, right? K is a dimensionless quantity with the understanding that the standard state concentration of all species is 1 molar. ठीक है. तो K डायमेंशनलेस, कोई कांस्टेंट है, K कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और हम ये मानते हैं स्टैंडर्ड हर एक स्पीसीज का 1 मोलर उस केस में. तो वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ द वीक एसिड्स आर गिवन हियर इन द टेबल. एंड इफ यू सी द टेबल, तो इसके अंदर क्या किया है उन्होंने, आयनाइजेशन कांस्टेंट तो कुछ एसिड्स का दिया है और किस एक फिक्स टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे,
तो अगर हम देखें द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये 10⁻⁴. इफ वी सी द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, दैट इज 10⁻⁻10. सो विच वन इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, HF और फिनॉल? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, इस लाइन से कि जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा है के की, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो अगर हम देखें HF, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है. कम है नेगेटिव के अंदर, वैसे इसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द फिनॉल. तो HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू फिनॉल. तो इस टेबल के बेसिस पे और बाय द कैलकुलेटिंग द के वी कैन कैलकुलेट कि कौन कितना स्ट्रॉन्गर और कौन कितना वीकर एसिड है. ये सेम अप्लाई होता है बेस के लिए. वहां बेस में केबी हो जाएगा तो केबी की वैल्यू से हम बता पाएंगे कौन कितना स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन कितना वीकर बेस है. ठीक है, राइट. नाउ वी सी द नेक्स्ट. द पीएच स्केल for the hydrogen ion concentration has been so useful that beside pKw it has been extended to other species as well. ठीक है, तो हम pH स्केल ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं. H+ की कहीं भी हमें कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है एंड वी नो द pH इज इक्वल टू -log द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion. Similarly pKw is what? If we see this, okay, so we see the pK is equal to -log Ka. जैसे pH में होता है वैसे pK हो जाएगा. Knowing the ionization constant K is Ka of an acid and at its initial concentration C, it is possible to calculate the equilibrium concentrations of all the species and also the degree of the ionization of acid and the pH of the solution. तो अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दे, अगर हमें के बता दे, तो हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके अंदर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट स्पीसीज की बता सकते हैं. ठीक है, द जर्नल स्टेप वाइज अप्रोच कैन बी adapted to evaluate the pH of the weak electrolyte as follow. तो अगर हमें स्टेप वाइज जाके कैलकुलेट करनी है पीएच की इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम ऐसे कर सकते हैं. पहला स्टेप, the species present before dissociations are identified as Bronsted-Lowry acids or base. जो पहले डिसोसिएशन से पहले प्रेजेंट होती है उसको हम Bl एसिड और बेस, Bronsted-Lowry एसिड और बेस कह देते हैं. सेकेंड स्टेप, हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक है, द बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल द पॉसिबल रिएक्शंस विद ए स्पीसीज एक्टिंग बोथ एज एसिड एंड बेस, सबको हमें बैलेंस कर लेना, लिख लेना. द रिएक्शंस विद द हायर वैल्यू ऑफ के इज आइडेंटिफाइड एज अ प्राइमरी रिएक्शंस, वाइल जिसकी दूसरी रिएक्शंस को हम सब्सिडरी रिएक्शन कह देते हैं, जो साथ वाली रिएक्शन हो रही है. फोर्थ स्टेप इज हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है. किस चीज की टेबल बनानी है जी? हमें टेबुलर वैल्यूज पे लिखनी है फॉर द ईच स्पीसीज इन द प्राइमरी रिएक्शन. जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज क्या है जब जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रही है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम तक पहुंच रही है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे क्या आ गई है. ठीक है जी. फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड लास्ट सेवंथ स्टेप विल बी लाइक दिस. फिफ्थ के अंदर substitute equilibrium concentrations in the equilibrium constant in equations for the principal reactions and solve the value of K. हमें हर जगह सब्स्टिट्यूट करनी है कि ये वैल्यू है और के अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, सॉरी अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमें निकाल लेनी है एंड हमें कैलकुलेट करनी है. फिर उसके बाद किस में, कॉन्सेंट्रेशन स्पीसीज की प्रिंसिपल रिएक्शन के अंदर. देन लास्ट के अंदर pH इज इक्वल टू -log द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ion और द H+ in aqueous solution we can say hydronium ion H3O+. ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, प्लस दिस प्लस विल बी इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, वी टेक केयर ऑफ दैट. हमेशा जैसे Cl- तो ये भी ब्रैकेट के अंदर रहता है, ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाना है. सबके ऊपर चार्ज नहीं है, स्पीसीज के ऊपर चार्ज है. एंड द अबव मेथोडोलॉजी हैज बीन इवैल्यूएटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल. ये देखो एग्जांपल, अब इस एग्जांपल से आप समझोगे एक्चुअली क्या किस चीज के स्टेप है 7 और उसके यूज क्या है. तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए पहले. सबसे पहले so if we read this numerical, the numerical says like this: the ionization constant of Kf is 3.2 into 10⁻⁴. ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया Kf का. ठीक है, क्या मांग रहा है, क्या कैलकुलेट करवा रहा है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दे दी, हमें डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है कितना टूटेगा और कांस्टेंट दे दिया है. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट, जो ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट और उसको ब्रैकेट में उनको मेंशन कर दिया, हाइड्रोनियम आयन, F- आयन एंड HF इन द सॉल्यूशंस एंड इट्स pH आल्सो. ये सारी चीज, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें सॉल्व करना है. ठीक है जी. सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेप हम लगाते हैं. पहला स्टेप क्या था? द स्पीसीज प्रेजेंट बिफोर डिसोसिएशंस आर आइडेंटिफाइड. ठीक है, द स्पीसीज प्रेजेंट बिफोर डिसोसिएशन आर आइडेंटिफाइड एज Bronsted-Lowry acid base
कॉन्सेप्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट स्टेप देखो। यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम वी आर एक्चुअली राइटिंग द प्रोटॉन ट्रांसफर द रिएक्शंस। तो हमने HF प्लस वाटर, तो ये आयन बनेंगे और ये K दे रखा है। सेकंड स्टेप अगर हम या सेकंड अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें HF का लिख लेना है, फिर उसके बाद वाटर प्लस वाटर, ये एक्चुअली हाइड्रोजन आयन कैसे फॉर्म हो रहा है, और OH माइनस आयन, क्योंकि इन्होंने यहाँ दिया है कि ये K तो इन्होंने यहाँ दिया है और KW हमें पता ही होता है, ठीक है, वाटर का ये कॉन्स्टेंट हमें याद रहता है। एंड इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, दैट इज एक्चुअली 10⁻⁻14। 1 इज कॉमन और इट्स ऑब्वियस, सो 10⁻⁻14 KW रहता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर रहता है। सो हमें पता है इस केस के अंदर कि Ka इज मच 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 ग्रेटर देन KW। कहाँ 10⁻⁻14, कहाँ 10⁻⁻4, कौन ज्यादा है? बहुत ज्यादा है Ka, ठीक है। इट द प्रिंसिपल रिएक्शन। तो एक्चुअली मैंने दोनों रिएक्शन लिख ली है जो हो रही होंगी सॉल्यूशन के अंदर और इस तरह के रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, कि एक तो HF टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में और वाटर के साथ, तो वाटर को प्रोटोनेट करेगा, दूसरा वाटर खुद भी टूटेगा। तो वाटर खुद भी टूटेगा तो उसमें हाइड्रोक्सी आयन भी बनेगा, बट हाइड्रोक्सी आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं रहेगी कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये इसलिए ज्यादा रहेगा, ये HF टूट रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको तो हमने नेग्लिजिबल कर दिया कि मतलब एक ही मेन रिएक्शन होगी यहाँ फर्स्ट वाली। तो हम लिख सकते हैं KF प्लस वाटर दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन माइनस F माइनस आयन, फ्लोराइड आयन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू T 0 पे H की 0 ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं। अब सेकंड इन्होंने दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन द न्यूमेरिकल एंड द सेकंड इज, हम क्या करते हैं, चेंज देखते हैं। तो चेंज तो माइनस में होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी एंड एट ए फिक्स टाइम दैट दिस विल अटेंड अल्फा, that is actually the dissociation amount of the extent of dissociation, ठीक है। तो 0.02 अल्फा एंड इधर 0.02 अल्फा हम लगा देंगे। फिर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे ये कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हुआ इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। सो हमने इक्विलिब्रियम चेंज देखा, इक्विलिब्रियम चेंज की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस फॉर द प्रिंसिपल रिएक्शन। तो हमने क्या किया, Ka एंड देन इफ वी जस्ट राइट Ka, तो हमें वो लॉ लिखना पड़ेगा, क्या, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना है उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय द सबस्ट्रेट का, जितने भी प्रोडक्ट है, अगर यहाँ सबस्ट्रेट तो एक ही है तो हमने प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन किया तो वी विल गेट दिस एंड हमने यहाँ सीधा सबस्ट्रेट का अमाउंट यानी रिएक्टेंट मतलब जो सबस्ट्रेट कह लो या रिएक्टेंट का अमाउंट हमने सीधा नीचे लिख दिया, बॉटम पे लिख दिया, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट इट 3.2 into 10⁻⁴. So we obtain this we obtain the following quadratic equation। ये बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्लस की टर्म में एक माइनस की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो हमें जो रूट्स आएंगे तो हमें एक +1 2 आएगा, एक -1 2 आएगा, ठीक है। नेगेटिव रूट एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि because that actually this is an imaginary number that is not properly defined, so we ignore that. So alpha we get +1 2 and this means that the degree of ionization alpha plus is equal to 0.12, okay, 0.12 and this should be the 0.12. I think I said alpha 12. This is alpha is equal to 0.12. Then equilibrium concentration of the other species HF, F minus and hydronium ion are given by hydronium ion की concentration F minus के बराबर रहेगी क्योंकि एक ही stoichiometrically और एक ही आयन एक केटायन बनेगा। तो C alpha is equal to after calculation that will get 2.4 into 10⁻³ molar. HF concentration C minus 1 minus alpha that we get 17.6 into 10⁻³ molar, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नो द pH, ये सॉल्यूशन कितना pH देगा, जो भी ये अगर कॉन्सेंट्रेशन हम डालेंगे HF की तो कितनी pH आएगी, तो pH इज इक्वल टू -log H concentration of H plus ion, so we will get -log and the concentration of H plus we will keep from actually that this is nothing but concentration of hydronium ion, ठीक है। H plus की concentration hydronium ion की concentration और इस केस में F minus फ्लोराइड की concentration सबके बराबर है तो pH इसकी 2.62 आएगी। तो इस तरह से हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू
के साथ साथ हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं, कितनी पीएच है ये पता कर सकते हैं, और बाकी आईएनसी कंसंट्रेशन कितनी है ये पता कर सकते हैं बाय फॉलोइंग these 7 steps. You can calculate pH, you can calculate the alpha value of the alpha, initial concentration और equilibrium concentration, और जो चेंज हुआ concentration वो लिखना है, ये सारे steps हैं, ठीक है. So this actually helps us if the concentration of any solution is given, like over here we got the concentration of H plus, ठीक है. यहाँ इतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर हम उसकी हेल्प से बाकी सारे पैरामीटर पता कर सकते हैं. ओके, दैट्स इट. And this was the way how we calculate the pH. Actually, we can determine the concentration of effectiveness of an acid or a base by knowing its the dissociation, percentage of dissociation. ठीक है, उससे भी कर सकते हैं. तो उस बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, और उस न्यूमेरिकल उस बेसिस पे कि परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है और उसको यूज कैसे है. ओके, देन वी अंडरस्टैंड दैट, एंड जस्ट बी विद मी लास्ट 2 minutes. So if the pH of 0.1 monobasic acid is given, that is 4.5. So first of all we should know what is a monobasic acid. Monobasic acid वो होता है जिसमें से एक H plus आयन रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3. ओके, इसमें से क्या होता है, जो ऐसे हम याद कर सकते हैं, एक H plus आयन रिलीज होता है. ये एक H plus आयन एक बेस को ही न्यूट्रलाइज कर पाता है. NaOH हो गया, KOH हो गया, एक बेस को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा. बट H2SO4 it can release 2 H plus ion. H3PO4 it can release more than 1 H plus ion. तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये फिर हम डाई बेसिक एसिड और वहां ट्राई बेसिक एसिड उस तरह में चले जाते हैं. और मोनोबेसिक मतलब एक H plus ion, सिंपली जो हम बात करते हैं एक H plus ion रिलीज करें. इट मीन्स इफ आई जस्ट ड्रॉप ए फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus HCl, that will directly we can calculate the concentration of H plus ion from there. बट अगर कोई डाई और ट्राई बेसिक एसिड है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चेंज हो जाएंगी, वो डबल हो जाएंगी, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. हम तो सोचेंगे इतना कॉन्सेंट्रेशन डाला है तो इतना ही रहेगी, बट वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है H2SO4 का कि वो डबल हो जाएंगे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये फ्रीली टूट के 2 H प्लस आयन रिलीज कर सकता है. यही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है बेस के केस में. वहां हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस, जैसे NaOH, KOH, मोनो एसिडिक बेस एक OH माइनस आयन रिलीज करेगा. और कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, दैट विल रिलीज 2 हाइड्रोक्सी आयन. आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे होंगे, ठीक है. उसको हम कह देते हैं फिर डाई एसिडिक बेस. ओके, तो हम मोनो एसिडिक की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी, जितना भी उसकी अमाउंट हमने लिया है उसके बराबर. Okay, so actually in this numerical we will understand a formula and we will apply that formula in the next problem, that is 7.20. तो वो हम next problem में उसको लगाएंगे. बट एक फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए अगर हमसे पूछता है तो सिंपली वी विल गेट लाइक दिस. क्या पूछा है? एंड HA इक्विलिब्रियम हमें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द K एंड PK ऑफ द मोनोबेसिक एसिड. फिर दोबारा से वही टर्म यूज किया, मोनोबेसिक एसिड. तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट विल हेल्प यू. ठीक है. सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू pH माइनस 10 माइनस pH. हमने क्या किया, H को हमने इधर रखा और इस लॉग टर्म को हमने इन्वर्स कर दिया, तो ये इस साइड में जाएगी तो माइनस pH, इसकी पावर में माइनस pH आ जाएगी. ठीक है, दैट एक्चुअली वी गेट दिस फ्रॉम द लॉगरिथम, दैट पोर्शन. दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4.5, जो हमें 4.5 क्या दिया हुआ है, 4.5 हमें pH दी हुई है. ठीक है. सो फ्रॉम द pH एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. pH से आप H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे तो ये चीज आप लिखोगे, इसे लिखोगे तो ये हमें आएगी 10 की पावर माइनस 5 3.16. ठीक है, इसको आप जब सॉल्व आउट करोगे, हमें पता है कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन. क्यों? क्योंकि एक मोनोबेसिक एसिड है ये. ठीक है, तो जितना H प्लस होगा उतना इसके रिस्पेक्टिव में एनाइन होगा. तो हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रखी. K हमने कैलकुलेट किया. K इज एक्चुअली अगेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द सब्सट्रैक्शन डिवाइड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्सट्रेट और रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट एक है और एक KHA इक्विलिब्रियम के ऊपर फिर हमने 0.1, दैट इज 0.1, फिर हमने उसको माइनस किया उनके रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से, दैट इज इक्वल टू 0.1. तो K अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1 into 10 पर माइनस 8. अगेन अगर हम PK लेके जाए तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 से हो जाता है PH में, PK में 8. ठीक है,
10 की पावर माइनस लॉग की n की पावर होती है, सीधा 8 आ जाता है। अल्टरनेटिवली हम एक और अगर कॉन्सेप्ट लगाएं, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। दिस इज ऑल्सो एन अनदर फैक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी फैक्टर बन जाता है किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक एसिड। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन, कौन चीज कितने परसेंट तक, कितने एक्सटेंट तक ब्रेक हो रही है, टूट रही है, ये हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन से, राइट। देन परसेंटेज डिसोसिएशन इज HA, दैट इज डिसोसिएशन डिवाइड बाय द HA, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू 100। कितना टूट चुका है, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन का केस है, फॉर्मूला है। सेकंड हम प्रॉब्लम समझते हैं इसी बेसिस पे, जो अभी हमने ये परसेंटेज डिसोसिएशन समझा है, इस बेसिस पे हम सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं। ओके, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, so please concentrate. Calculate the pH of 0.08 molar solutions of hypochlorous acid. Hypochlorous acid का फॉर्मूला होता है जी HOCl। ठीक है, the ionization constant of the acid is given, that is 2.5 into 10 की पावर माइनस 5, कांस्टेंट दे रखा है, कोई यूनिट नहीं है आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। तो परसेंटेज डिसोसिएशन, ये फार्मूला हमें जो पहले हमने पढ़ा, इसको हमें लगाना और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्लस H2O इन लिक्विड। ठीक है, उसकी हर एक की स्टेट बतानी है, लिक्विड है या एक्वस है। तो हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जिसका अमाउंट दिया हो दैट इज 0.08, इसका 0, इसका 0। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर हमें क्या मिलेगा, -x प्लस x। फिर हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जब आएगी तो हम क्या करेंगे, इनिशियल से इक्विलिब्रियम जो आया है उस कॉन्सेंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे xx, फिर k लगाएंगे, वही अगेन सेम प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, H2O का कोई मतलब नहीं है क्योंकि H2 हमने लास्ट में देखा H2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत कम होगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें जो x मिला है ये 0.08 से बहुत बहुत कम है। अगर हमें सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 माइनस 0.00001, तो कुछ नहीं, दैट विल बी वेरी क्लोज टू 1 ओनली, सो वी विल राइट इट लाइक द 0.08 ओनली। ठीक है, यहाँ सबसेक्शन कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपली वी विल डिवाइड x स्क्वायर डिवाइड बाई 0.08, दैट विल गेट दिस। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 x इज इक्वल टू 1.10, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर हम H प्लस एन की कॉन्सेंट्रेशन हम ऑब्टेन करना चाहें, दैट विल बी 1.41 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर। देयरफॉर द परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी HOCl डिसोसिएशन, जो हमने सीधा फॉर्मूला यहां से पिक किया, ये वाला फॉर्मूला सीधा हमने यहां रखा है, द परसेंटेज डिसोसिएशन HOCl डिसोसिएशन डिवाइड बाय द HOCl इनिशियल इनटू 100, एंड हमें फिर यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन आई सिर्फ 1%, 1.76% ये वो डिसोसिएट हो रहा है। pH वी गॉट दैट इज माइनस लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो हमें ये आ जाएगा इसको सॉल्व आउट करने पे, ये न्यूमेरिकल्स है। ओके, दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आल्सो यू कैन गेट इन योर examinations. This is directly from NCERT. Okay, so that's it for this video. Thank you, and if you like the video, please hit the like button.